Very good morning to all of you. We have in last lecture number 3 of MA Applied Mechanics, we have seen about the Newton's law. Three laws we have seen. First one is the every object in a state of uniform motion will remain in the state of motion unless any external force act on it. तो कोई बॉडी जब तक मूव नहीं होगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा या वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा। दूसरा लॉ यह है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड थर्ड लॉ of Newton is for every action there is equal and opposite reaction। तो हर अमल का रद्द-ए-अमल मसावी और मुकाबिल होता है। तो ये तीन लॉ न्यूटन के आप लोग ने देखे थे, दो बहुत इम्पोर्टेंट है मैकेनिक्स पढ़ने के लिए और उसका बहुत हद तक यूज़ मैकेनिक्स में होता है। लेकिन फिज़िकल लाइफ में ये पूरे प्रूव होते हैं, वी कांट से, हम बोल नहीं सकते कि हर सिचुएशन में ये प्रूव हो। फिर यू सीन द स्पेस डेफिनेशंस, टाइम, पार्टिकल, बॉडी, center of mass and other definition for rigid bodies, elastic bodies. Also we have seen the scalar and vector quantity. Also we have seen the examples of scalar and vector quantity by video animation on internet in last class. So vector quantity is having a magnitude and direction. Okay, so displacement, velocity, acceleration, force, मोमेंट और मोमेंटम, ये सब हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड वी आर आल्सो सीन द डेफिनेशंस ऑफ मास। टुडे we will see in today's lecture the outcome will be weight, fundamental units, derived units, system of units, and difference between mass and weight। Yasir Khan, next time I will not allow after lecture will start after 5 minutes. Okay, so you should join on time। In last class you seen the mass, the quantity of matter contained in a body is called as mass of body। It's called mass is the scalar quantity having magnitude only।
Now the today's lecture we will see the weight, the force with which the body is attracted toward the center of earth is called as weight. It is a vector quantity having magnitude and direction both. It does not remain same at all places. It is measured only by spring balance. Unit of weight is Newton. So what is weight? Weight is a वेक्टर क्वांटिटी और ये सब जगह सेम नहीं रहता। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड यानी कोई वैल्यू हो और उसका डायरेक्शन हो। तो हमारी बॉडी को जो ज़मीन की कशिश शक्ल है वो अपनी तरफ खींचती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इसकी वजह से वेट क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और ये हर जगह सेम नहीं होता है ना। अगर हम ज़मीन की कशिश शक्ल देखें तो ये चांद की कशिश शक्ल से अलग है। इसी तरह दूसरे प्लेनेट पर उनकी कशिश शक्ल अलग है। और खिला में ग्रेविटेशनल फोर्सेस नहीं है, इसलिए हर चीज़ें हवा में मुअल्लक होती हैं। हवा तो है ही नहीं खिला में, तो वो मुअल्लक होती है, यानी वो इंसान जो खिला में जाता है दे आर नॉट अट्रैक्टेड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ज़मीन की कुछ कशिश शक्ल है, इसके लिए हम ज़मीन पर चल सकते हैं, फिर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कशिश शक्ल नहीं होती तो हम हवा में मुअल्लक रहते हैं, है ना। तो इसके लिए वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, एंड वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, and that is denoted by small g, and the value of g is 9.81 meter per second square. So what is weight? It is the force with which the body is attracted toward the center of earth is called as weight. Okay, और आगे हम लोग दोनों के डिफरेंस भी देखेंगे। नाउ वी विल कम द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। Okay, so there are two types of units of measurements। एक तो बेसिक यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं या फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, दूसरी जो है डिराइव्ड यूनिट है या ऐसी यूनिट जो बेसिक यूनिट से निकलती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? पहले तो लेंथ लंबाई, मास m, इसी तरह टाइम t, these are denoted by the letters L for length, that is लंबाई। it is a basic unit क्योंकि ये किसी और यूनिट से डिराइव्ड नहीं है। इसी तरह मास और इसी तरह
टाइम, वक्त, these all are the fundamental physical quantities, and the units of measurement for these fundamental quantities are called as basic units. It is also defined as the unit that which are not dependent on any other unit. तो बेसिक यूनिट क्या है? जो कोई दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। जैसे कि पहला हम देखेंगे मास। मास को हम लोग शो करते हैं लेटर एम से, या सिंबल क्या है उसका? लेटर एम। और एसआई यूनिट में उसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम। और उसका सिंबल क्या है? केजी। हम लोग आम तौर पर इसको क्या बोलते हैं? वजन, है ना? तो दीज आर द बेसिक यूनिट्स। ये क्या है? हमारी बेसिक यूनिट्स है ना? दूसरी है लेंथ। इसका सिंबल क्या है? एल, डायमेंशन में। और एसआई यूनिट में उसको मेजर करते हैं हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में। तो मीटर का सिंबल क्या है? एम, दैट इज कैपिटल एम, है ना? तो ये दोनों बेसिक यूनिट हो गई। फिर उसके बाद हमारी तीसरी बेसिक यूनिट जो है वो टाइम है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग टी से, और इसको मेज़र करते हैं हम लोग एसआई सिस्टम में। एसआई मीन्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना? तो इसको मेज़र करते हैं हम लोग एसआई यूनिट में सेकंड्स में। और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल एस है। क्या है? स्मॉल एस है। तो ये तीनों जो हैं 1, 2, 3, ये तीनों कौन सी यूनिट है? ये तीनों बेसिक यूनिट्स हैं। ये तीनों बेसिक यूनिट्स हैं। और फोर्स इज अ फंडामेंटल यूनिट। अगर फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे तो मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है? हमारे फंडामेंटल यूनिट्स है। फोर्स को भी फंडामेंटल यूनिट हम लोग कंसिडर करते हैं। दे आर मेजर्स इन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हालांकि हम देखेंगे कि ये डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर मास भी है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन भी है ना? तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट योर फोर्स एफ इज इक्वल टू एम। हम लोग आगे और देखेंगे इसको फोर्स के ताल्लुक से डेफिनेशन। उससे पहले हम देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट किसको कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स किसको कहते हैं? तो व्हेन द यूनिट्स यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ physical quantities by adopting basic units of measurements are called as derived units. It is also defined as the unit which depend on fundamental units. तो derived units किसको बोलते हैं? ऐसी यूनिट
जो कि बेसिक यूनिट से मिलकर बनी है या उसके इस्तेमाल से बनी है। तो ऐसी यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। यानी कि डिराइव्ड यूनिट ये डिपेंड है फंडामेंटल यूनिट्स पर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक यूनिट्स पर ये डिपेंड है। उसके बगैर हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते। तो डिराइव्ड यूनिट्स आर derived from basic units. That's why they are called as derived units. तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो स्पीड को अगर डायरेक्शन है तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। एंड दैट इज द derived unit, that is meter per second, which is derived from basic units of length and time. लेंथ भी बेसिक यूनिट है और टाइम भी बेसिक यूनिट है। तो मीटर पर सेकंड, लेंथ को हम सिंबल m यूज़ करते हैं, टाइम को हम सिंबल s यूज़ करते हैं। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड, जो कि डिवाइड है दो बेसिक यूनिट से, लेंथ और टाइम से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। ओके। इसी तरह आप देखेंगे डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट्स, जैसे कि फोर्स है, वेट है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल एन से। इसी तरह एरिया है, स्क्वायर मीटर में हम लोग इसको डिनोट करते हैं सिंबल। और दो लेंथ को अगर हम जमा करेंगे, अरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेंथ इंटू एल, दैट इज एम इंटू एन स्क्वायर मीटर, यानी दो यूनिट बेसिक यूनिट लेंथ को डबल टाइम यूज़ करेंगे, तो दैट इज एरिया and it is denoted by meter square. So it is derived from the basic unit length. That's why it is called as derived unit. इसी तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी आप देखेंगे कि आपका 3 डायमेंशन होता है। अगर हम एक क्यूब लें, ये हमारा क्यूब है ना? तो क्यूब में आप देखेंगे कि आपको यहाँ लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, और तीसरा जो है वो हाइट भी है। तो कितनी लेंथ की यूनिट हो गई यहाँ पर? बेसिक यूनिट लेंथ एक हो गई, ब्रेड्थ तो एक हो गई, हाइट एक हो गई। कितने हो गए? 3। तो क्या हो गया? सिंबल इसका मीटर क्यूब। क्या हो गया? मीटर क्यूब। लेंथ भी हम मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेड्थ भी हम मीटर में मेजर करते हैं, हाइट भी मीटर में मेजर करते हैं। तो एम 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 3m मीन्स m क्यूब, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। और ये डिवाइड है कौन सी यूनिट से? लेंथ से। इसी तरह आपने वेलोसिटी अभी देखा था, तो मीटर पर सेकंड, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इतनी स्पीड से हमारी मोटर कार चल रही है, और उसको हम लोग कौन से यूनिट से डिनोट करते हैं? 60 किलोमीटर पर आवर। आवर इज द यूनिट ऑफ सेकंड, डिवाइड फ्रॉम सेकंड। 60 सेकंड इंटू 60 मिनट, 60 मिनट का 1 आवर होता है हमारा, है ना? दैट इज द डिवाइड फ्रॉम द यूनिट सेकंड। एंड मीटर, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेंथ। तो वेलोसिटी इज आल्सो अ डिराइव्ड यूनिट, जो कि लेंथ और टाइम बेसिक यूनिट से डिराइव्ड है। इसी तरह एक्सीलरेशन, इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि मीटर ये लेंथ और सेकंड स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर है। तो दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर is called as acceleration, and this is also
derived from length and time. इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी, यानी जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज रेडियन पर सेकंड, हम लोग मेजर करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, तो दैट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम यूनिट, है ना, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम रेडियन, दैट इज द path covered by the any object, it is radian per second, यानी कितने सेकंड में वो कवर कर रहा है दैट लेंथ, इट इज कॉल्ड एज रेडियन पर सेकंड. इसी तरह एंगुलर एक्सीलरेशन, it is radian per second square. These all are the derived units. Then density, kg per cubic meter. Kg is the unit of mass and meter cube is the unit of volume. So volume is derived unit, kg is the mass, it is also derived unit. तो डेंसिटी, अरे दैट इज द बेसिक यूनिट. तो बेसिक यूनिट से मिलकर जो हमारे यूनिट बनते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट. तो ये भी डिराइव्ड यूनिट है. इसी तरह वर्क हम लोग जूल में इसको मेज़र करते हैं, एनर्जी को जूल में मेज़र करते हैं या न्यूटन मीटर में मेज़र करते हैं, तो दैट इज़ आल्सो अ डिराइव्ड यूनिट. इसी तरह मोमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन मीटर में हम मालूम करते हैं, लेंथ इनटू मीटर, इट इज़ नथिंग ऑफ मोमेंट. तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो अ डिराइव्ड यूनिट. इसी तरह मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड, ये क्या है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है. कहाँ से डिराइव है, बेसिक यूनिट से. तो दैट्स व्हाई इट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम इज आल्सो derived units. The unit of momentum is nothing but that is Newton, Newton second, that is kg meter per second, that is the momentum. इसी तरह टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, पावर वाट और जूल, जूल watt is nothing but joule per second, that is also the derived units. तो these are the derived units. तो आपको समझ में आ गया बेसिक यूनिट किसको बोलते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं होती, जो यूनिट्स किसी पर डिपेंड नहीं होती, है ना, जैसे लेंथ है, जैसे मास है, जैसे टाइम है. लेकिन डिराइव्ड यूनिट क्या है, जो डिपेंड होती है दूसरी बेसिक यूनिट्स पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट, जो कि बेसिक यूनिट से डिराइव्ड है. तो यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल हम लोग ने देखे डिराइव्ड यूनिट का. तो इस तरह हम लोग यूनिट्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में. ओके, नाउ देयर आर द मेनी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, है ना. सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन द वर्ड. एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट. फुट फीट आप मालूम है, 1 फीट यानी 30 सेंटीमीटर होता है. तो फुट पाउंड सेकंड अगर ये सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो उसको एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं. दीज आर द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. ओके, तो फुट पाउंड अगर सेकंड हम लेंगे, फीट, फुट, पाउंड, it is written as pound and s is the second. So foot per second is the fps system. Previously generally this system is firstly defined and we are used earlier. Then cgs system of unit come into the picture, that is centimeter, gram and second, that is called as cgs system, है ना. So this is also used some countries even earlier. And then the MKS system of units come into the picture. Length is measured in the meter,
mass is measured in the kilogram and time is measured in the second. इसी तरह CGS system में length is measured in the centimeter, mass is measured in the gram, and S time is measured into second. So that is CGS system. Whereas in MKS system, mass is measured in meter, and sorry, length is measured in meter, and mass is measured in the kilogram, and time is measured in the second. So this is the MKS system. And then SI system of units, system of units we have seen here. तो इसी तरह बेसिक SI units are length, it is meter or millimeter, m or mm we can use symbol. इसी तरह mass kilogram in kg and time in second s. This is somewhat, you can see it is similar to your which unit MKS system, you can see SI units of system. So this system of international nowadays internationally approved and used. Okay, and their symbols and physical quantities are written here. Now the derived unit already we have seen. This is also coming into the system of international, and they they are derived from basic unit. That's all called as the uh, derived units. Now we will see the difference between mass and the weight. Okay, you can see here what is mass. तो mass, हेलो हाँ क्या है, please mute yourself. तो mass is denoted by letter M, and any quantity that contains matter, yani any body that contains the matter is called as mass, and it is denoted by M. Weight का है, it is a force with which the body is attracted toward the center of earth, and it is nothing but uh, mass into gravitational acceleration, m into g, है ना, you have seen earlier. Mass is the scalar quantity जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, whereas weight is the vector quantity जिसको आप बोलेंगे कि that is magnitude also and direction both are there. तो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिनको हमारा डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड के साथ, यानी वजन भी है और डायरेक्शन भी है. तो मास अट्रैक्ट अगर होता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, अगर हम देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेट, क्योंकि वेट वी आर कंसिडरिंग द अर्थ gravitational force also, that is, that's why is a vector quantity. Mass remains same at all places. कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, आप कहीं भी जाएंगे तो उसका जो मास है वो सेम रहेगा, है ना, लेकिन वेट doesn't remain same at all places but changes from place to place, है ना. जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया कि कृषि से शक्ल ज़मीन की कुछ और है, चांद की हम देखेंगे तो वो कुछ और है. तो जो वेट है एक आदमी का या कोई चीज़ है, उसका वज़न, उसकी वेट जो है ज़मीन पर कुछ और रहेगा और दूसरी जगह कुछ और रहेगा. इट कैन बी मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस.
mass can be measured by ordinary balance, but weight is measured only by spring balance. So only spring balance they will give us the weight of your body. Unit of mass is kilogram, unit of weight is न्यूटन. ये याद रखना है, ये याद रखना है कि यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम है, और यूनिट ऑफ वेट क्या है, ये न्यूटन है, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट योर न्यूटन. फोर्स इंटू एक्सेलरेशन इज न्यूटन. W इज इक्वल टू mg. ओके, तो वो and m is equal to W upon g, that is mass of a body, and weight is equal to weight of a body. G is the gravitational acceleration. जनरली our अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो कितना है, इट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हमारा वैल्यू ऑफ जी है, जो कि अर्थ पर आप कहीं पर भी जाएंगे दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट. No one be allowed after the 10 minutes of lecture is started. That should be noted. That's why each student should be join on time. तो ये डिफरेंस बिटवीन हमारा मास और वेट हो गया. नाउ वी विल सी अबाउट द फोर्स. फोर्स इज नथिंग बट it is also the mass into acceleration. This is F is equal to mass m into acceleration a. So force is equal to mass into acceleration, and the unit of force is Newton or kilonewton. Force क्या है? It is an external agency, either push or pull. है ना, अगर हम किसी को ढकेलते हैं तो पुश हो गया, और अगर हम किसी को खींचते हैं तो वो पुल हो गया, है ना. तो पुश और पुल which changes or tends to change the state of rest or state of uniform motion of body upon which act. तो अगर हम कोई बॉल हमारी तरफ से हमारे सिम आ रहा है, हम उसको सिर्फ टच कर दे, उसका डायरेक्शन चेंज कर दे तो दूसरी तरफ चला जाएगा, है ना, एक कांस्टेंट स्पीड में है. पेंडुलम जैसे हम लोग देखते हैं, घड़ी का पेंडुलम कंटिन्यू चलते रहता है, अगर हम उसको हाथ लगा दे तो वो रुक जाता है ना. क्यों रुक जाता है? क्योंकि हम उसको रोकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दिया. इसी तरह कोई बॉल अपनी जगह पर रखा हुआ है और हम लोग किक करते हैं हमारे पैर से, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट है, लेकिन हम जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, किक मारते हैं, यानी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है कि तेज़ी से सामने की तरफ जाता है, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में हो गया. So that is called as force. Who is this Zaid Siddiq? Zaid Siddiq, please don't do that. I will not allow you. I am not allowing you, but you are still many times tried. मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि लेक्चर शुरू होने के 5 मिनट के बाद मैं किसी भी बच्चों को लेक्चर में एडमिट नहीं करूँगा. So you should take care of this. Okay? So it is an external agency. फोर्स क्या है? एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है, इसलिए इसको क्या बनाना, एक्सटर्नल. आइदर पुश और पुल, या तो हम ढकेल रहे हैं या फिर उसको खींच रहे हैं, है ना. जैसे कि हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो हम खींचते हैं अपनी तरफ, दैट इज पुल, है ना. बॉल को हम फेंकते हैं
तो वो क्या हो गया, पुश हो गया, है ना। तो कोई भी चीज़ को हम स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट करेंगे तो रेस्ट द अप्लाइंग एक्सटर्नल लोड और एक्सटर्नल एजेंसी के एप्लीकेशन से, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। इसी तरह कोई चीज़ ऑलरेडी मोशन में है और उसको हम रोक देते हैं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, फोर्स हम अप्लाई किए और उसकी वजह से वो बॉडी जो है मोशन में थी वो रुक गई। या कोई बॉडी कंटिन्यूस मोशन में है और हम उसको टच कर दें, उसका डायरेक्शन चेंज कर दें, तो दैट इज ऑल्सो द अप्लाइड लोड एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स। Force represents the action of one body on another, characterized by its magnitude and direction of its action. किस डायरेक्शन हम बॉल थ्रो कर रहे हैं, किस तेजी से हम फेंक रहे हैं, वो दोनों को अगर मिलाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो a matter of fact. So this is nothing but force. And force is, we know that it is a vector quantity and unit of force is Newton. And 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square. It is it 1 Newton. So that is called as unit force. यूनिट फोर्स किसको बोलते हैं कि 1 केजी मास जो प्रोड्यूस करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, दैट इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट फोर्स। समझ में आया कि 1 किलोग्राम मास अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स, यानी यूनिट फोर्स। तो यूनिट फोर्स इज नथिंग बट 1 न्यूटन और सिंपली यू कैन से न्यूटन। तो दैट इज द यूनिट फोर्स, यूनिट फोर्स इन न्यूटन। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स, इट मे चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में, मोशन में हम लोग ला रहे हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट है, या एक बॉडी ऑलरेडी स्टेट ऑफ मोशन में, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में है और हम उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है। या उसको रोक रहे हैं तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है। इट मे एक्सीलरेट और रिटार्ड द मोशन ऑफ बॉडी। एक्सीलरेट और रिटार्ड यानी एक्सीलरेट होना, आगे बढ़ना, रिटार्ड यानी रोकना। जैसे कि इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल क्या है कि हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी जैसे ही स्टार्ट होती है और जैसे ही एक्सीलरेशन दिया जाता है, जैसे ही स्पीड बढ़ाई जाती है, हम क्या फील करते हैं कि हम पीछे की तरफ होते हैं। पीछे की तरफ होना यानी स्टेट ऑफ रेस्ट से हम स्टेट ऑफ मोशन में आए, और इसको क्या हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेट होना। रिटार्ड इसका अपोजिट, जैसे कि हमारी गाड़ी चल रही है और चलते चलते अचानक हमने ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारा तो हमारी बॉडी आगे की तरफ होती है, यानी हमारा जो एक्सीलरेशन है वो रिटायर्ड हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, रिटायर्ड नहीं, रिटार्ड हो रहा है, और हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है उसको बैलेंस करने के लिए अपने वजन को, वेट। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेट और रिटार्ड ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। इनमें it may turn or rotate the body on which acts। तो फोर्स किस पर अप्लाई किए, तो वो या तो अगर रेडियन में है तो वो रोटेट होगा, अदरवाइज वो मूव होगा। इसी तरह इट में डिफॉर्म द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। अगर इलास्टिक बॉडी है
तो उसका डिफॉर्मेशन होगा, रिजिड बॉडी है तो वो अपनी प्लेस से आगे बढ़ेगा, तो इट विल डिफॉर्म ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हम एक बार रिवाइज करते हैं। पहले हम लोग ने देखा कि मास का डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में देखा था, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, एंड then we have seen today weight, the definition of weight. Weight is the vector quantity and it depends on the mass and the acceleration. And acceleration due to the gravitational force of earth on earth surface of earth, and the gravitational force of earth is 9.81 meter per second square. That is constant anywhere you will go on the earth. Definitely you have also seen the units of measurements. इसमें हम लोगों ने देखा बेसिक यूनिट्स क्या हैं, 3 बेसिक यूनिट्स हैं, मास है, लेंथ है और टाइम है। और उससे फिर हमने डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट्स देखे। उसमें हम लोगों ने फोर्स, वेट, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, किलोग्राम, टेम्परेचर, पावर, ये सब देखे हम लोग ने। तो ये है डिराइव्ड यूनिट्स। फिर हम लोग ने देखे डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट, एंड देन वी हैव सीन अबाउट द फोर्स, व्हाट इज फोर्स। अब इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स सिस्टम, एंड ऑल्सो वी विल सी द transmissibility of force as per your, you can see here, this lecture we will see inshallah Bose notation and other things. Okay, so you can refer your unit and unit outcomes. So we will stop today and we will continue on further lecture. I request all students, you should join on time so that we will cover the as much content as required in the one lecture, so that no extra lectures are required for that. I will sharing you on Google Classroom the materials. You can study regularly, and we will take your unit wise test and examination. So any doubt is there, you can ask. सर हाँ बोलिए। सर आफ्टरनून में कोई लेक्चर नहीं रहेगा? नहीं, टाइम टेबल चेंज नहीं होना बेटा। अच्छा हाँ। यूनिट से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछिए, और रेगुलर स्टडी आप करेंगे तो आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और आप जब स्टडी करेंगे, जब भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आई, आप मुझको व्हाट्सअप पर्सनल पे कर सकते हैं या ग्रुप में कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन यू। ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और रेगुलर स्टडी आप करते रहिए।